the previous video in which we will see inverse of a matrix. So first we will see a theorem. So the theorem says a square matrix A is invertible if and only if matrix A is non-singular matrix. So now we will understand this theorem. So we know that if there is a matrix A, okay, if there is a matrix A and there is another matrix B, दो मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है A एंड B, सच दैट दोनों का प्रोडक्ट AB एंड B है, ठीक है. If product of matrix A and B is equals to identity matrix, means AB and BA both are equal and both are equal to identity matrix, then this matrix A and B are invertible matrices. Means inverse of A exists and inverse of B is also exist, and this matrix B is the inverse of A and matrix A is the inverse of B. So this is invertible matrices. Means whenever there is a matrix A and there exists a matrix B such that their product means AB and BA both are equal and both are equal to identity matrix, then matrix A is inverse of B and matrix B is inverse of A. ठीक है, दोनों एक दूसरे का inverse होगा. Now let's pick AB equal to I. ठीक है, let's pick AB equal to I. So if AB equals to I, that means this matrix is equals to this matrix. So we can say determinant of AB is equals to determinant of matrix I. अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, so determinant of matrix AB is equals to determinant of matrix I. ठीक है. And what is determinant of matrix I? Determinant of identity matrix is basically 1. You can find out from here. So this is the identity matrix of order 3. इसका डिटरमिनेंट 1 होगा. ठीक है. इफ यू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन आल्सो इसका डिटरमिनेंट विल बी 1. ठीक है. सो डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1. सो डिटरमिनेंट ऑफ I is 1, and we can apply the property in this determinant of AB. We know that determinant of AB is product of determinant of respective matrix. ठीक है. So determinant of AB is basically determinant of A into determinant of B. So we can apply this property here. So ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा determinant of A into determinant of B. Now ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है. So when AB equals to I, determinant of A into determinant of B is 1. And if अगर determinant of matrix A and determinant of matrix B कोई भी एक अगर determinant का वैल्यू 0 होता है, तो ये कभी 1 मिलेगा मेरे को, कभी नहीं मिलेगा. ठीक है. Therefore determinant of matrix A and determinant of matrix B has to be non-singular matrix. ठीक है. ये दोनों का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता. अगर ये दोनों का वैल्यू 0 होता है तो मेरे को कभी 1 मिलेगा ही नहीं. ठीक है. सो 1 कब मिलेगा, जब ये दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. सो दैट मीन्स A एंड B आर इन्वर्टिबल. ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन एग्जिस्ट तब होगा जब ये दोनों का प्रोडक्ट 1 मिलेगा. और ये दोनों प्रोडक्ट कब 1 मिलेगा, जब दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. सिंगुलर मैट्रिक्स होने पर ये प्रोडक्ट कभी 1 होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता. ठीक है. देयरफॉर A एंड B इन्वर्टिबल होने के लिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द थ्योरम सेज. A and B are invertible matrices, or I can say matrix A is invertible when, if and only if determinant of matrix A is not equal to 0. That means matrix A is non-singular. ठीक है. Now we will find out inverse of matrix A. So we have seen this theorem in which we have seen that A into adjoint of A and adjoint of A into A, ये दोनों का वैल्यू सेम होता है. एंड प्रोडक्ट ऑफ A and adjoint of A is equals to determinant of A multiplied by identity matrix. सो लास्ट वीडियो में हम एक थ्योरम शो किया था, उसमें हम इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करके दिखाया था. ठीक है. सो फ्रॉम दैट थ्योरम आई कैन राइट A into adjoint of A or adjoint of A into A is basically determinant of A into I. ठीक है, ये वो थ्योरम था. नाउ वी विल find inverse of A from this theorem. So let's pick this equation and let's try to find A inverse. So we can take any two terms. Let's pick this two term. We can also pick this two term. Okay, ये दोनों टर्म हम पिक कर सकता. So कोई भी टर्म को पिक करने से इनवर्स ऑफ A निकल के आ जाएगा. बट लेट्स पिक दिस टर्म. ठीक है, ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ A into A equals to determinant of A
into I. ठीक है. So how will we find inverse of A? So let's post multiply A inverse. So adjoint of A into A. So we are post multiplying, that means यहाँ पे A inverse multiply होगा. ठीक है. So determinant of A into I A inverse. So there is two types of multiplication. One is pre-multiplication and post-multiplication. Since let's say there is two matrix A and B. In general, A and B is not equal to B into A. ठीक है. So AB is not equal to BA. ये दोनों इक्वल नहीं होता मैट्रिक्स के लिए. जैसे नंबर्स रियल नंबर्स में होता है, लाइक 1 into 2 is equals to 2 into 1, और I can say -1 into 2 is equals to 2 into -1. So in real number AB is equals to BA. ठीक है. अगर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, so AB is equals to BA. That means product of real numbers are commutative, but in matrix product of matrix are not commutative. ठीक है. ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स आर नॉट कम्यूटेटिव. इसीलिए दो अलग अलग टर्म है, वन इज प्री मल्टीप्लिकेशन एंड इज पोस्ट मल्टीप्लिकेशन. हियर बी इज पोस्ट मल्टीप्लाइड टू ए, मतलब बी को मल्टीप्लाई किए ए के बाद में. ठीक है. हियर बी इज प्री मल्टीप्लाइड टू ए, सो मतलब बी को मल्टीप्लाई किए ए के पहले. सो दीज आर टू टर्म्स, प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे जो हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई किए वो हम पोस्ट मल्टीप्लाई किए, मतलब हम ए इनवर्स को बाद में एंड में मल्टीप्लाई किए. ठीक है. सो यहाँ पे हम ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई किए. नाउ व्हाट इज ए इंटू ए इनवर्स? सो मैट्रिक्स ए है एंड उसका इनवर्स है. अभी हम यहाँ पे बताया था कि ये जो मैट्रिक्स ए बी है, ये जो मैट्रिक्स ए बी है, इसमें ए के बी का इनवर्स है एंड बी के ए का इनवर्स है. ठीक है. इसलिए दोनों प्रोडक्ट मेरे को आई मिलते हैं. सो बी इज बेसिकली इनवर्स ऑफ ए. सो हियर ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स है, सो दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा मेरे को आई मिलेगा. सो इसका प्रोडक्ट इज आई. सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल्स टू, एंड ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स. सो आई इंटू ए इनवर्स इज बेसिकली ए इनवर्स. नाउ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड विथ आई, सो आई विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स. ठीक है. अब ये तो स्केलर है, सो इस स्केलर को हम डिवाइड कर सकते हैं. सो ऑन डिवाइडिंग डिटरमिनेंट ऑफ ए आई विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. सो ये क्या? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स. इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन टू यू, वी कैन फाइंड adjoint of A and we can find determinant of A. So on putting the matrix adjoint of A and value of determinant of A, we can find inverse of A. So this is the formula that students should remember to find out inverse of A. ठीक है. ये वो फॉर्मूला जिसको याद रखना है इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए. एंड यू कैन सी यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है. ठीक है. सो डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स ए शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर द ए इनवर्स टू एग्जिस्ट. So this is the formula that you should remember. Now we will see some problems based on this topic. So now we will solve this question in which a matrix is given to you and we have to find inverse of that matrix. So let's write that matrix. So this is the matrix. Let's name this matrix as A. ठीक है. ये क्या है? Matrix A है and we have to find A inverse. We have to find A inverse. So to find A inverse, we will apply the formula. So A inverse is adjoint of A divided by determinant of A. So इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 by determinant of A into adjoint of A. ठीक है. Now we will find first determinant of A. Let's find determinant of A. So determinant of A is determinant of 2, -2, 4 and 3. So determinant of order 2 कैसे निकालते? ये दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस पुट करना है, देन ये दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो 2 into 3 is 6, minus 2 into 4, -2 into 4 is -8. इसको सॉल्व करने पर we will get 14. So 14 is the determinant of A which is not equal to 0. That means ये जो मैट्रिक्स है ये क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. सो हम लोग को ए इनवर्स निकालना है. सो टू फाइंड ए इनवर्स, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. सो एडजॉइंट ऑफ ए. अब ये तो डिटरमिनेंट ऑफ, ये तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है. सो इसका एडजॉइंट निकालना इजी है क्योंकि इसके लिए शॉर्टकट है. एंड शॉर्टकट क्या है?
ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको इंटरचेंज करना है, एंड ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसका साइन चेंज करना है, ठीक है। इसका साइन चेंज करना है या फिर -1 मल्टीप्लाई करना है दोनों एलिमेंट के साथ में, -1 मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स इंटरचेंज दीज एलिमेंट्स। सो यहाँ पे 3 पुट करना है, यहाँ पे 2 पुट करना है, एंड ये एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है या फिर -1 मल्टीप्लाई करना है। इफ यू मल्टीप्लाई -1 विथ -2 you will get 2, and if you multiply -1 with 4 you will get -4, ठीक है। सो -1 मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो गया और यू कैन डायरेक्टली चेंज द साइन। सो इस तरह से आई कैन फाइंड adjoint of A. Now we will put this matrix adjoint of A and determinant of A in this formula, ठीक है। So A inverse is 1 upon, what is determinant of A? Determinant of A is 14. So let's put 14 in the value in the determinant of A. Next, adjoint of A. What is adjoint of A? Adjoint of A is 3, 2, -4 and 2. This is adjoint of A. ठीक है, ये है adjoint of A and ये है determinant of A. Now, if I multiply 1 by 14 with all the elements in the matrix, so I will get 1 by 14 into 3 will become 3 by 14. Next, 1 by 14 into 2 will become 2 by 14, which is 1 by 7. And -4 into 1 by 14 is -4 by 14, which will become -2 by 7. -2 by 7. Next, 1 by 14 into 2 will become 1 by 7, ठीक है। So this is, ये जो मेरे को मैट्रिक्स मिला है ये क्या है? ये है A inverse मैट्रिक्स, ठीक है। So this is how you apply the formula to find inverse of any matrix. Now let's take one more problem. Now we will solve this question in which we have to find inverse of the given matrix. Let's say this is matrix A, ठीक है। Now this is a matrix of order 3. Now we have to find inverse of this matrix. For that, first we need to find determinant of A. So let's find determinant of A. So I will solve this by using row 1, क्योंकि row 1 में maximum number of zeros है. So it will be easier to solve using row 1. And what was the sign for row 1? It was plus, minus and plus. Now first element क्या है? row 1 का 1 है and sign क्या है? plus. So plus 1. अब first element first row first column में, इसको delete करने पर this element will be remaining, इसको put करना है determinant में. So determinant of 3, 0 and 2 -1. And so बाकी एलिमेंट्स लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर विल गेट 0. सो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगा वो 0 आएगा, सो फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में. सो वी विल सॉल्व दिस. सो 1 इंटू, सो +1 इंटू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी दिस वैल्यू. सो इसको सॉल्व करने से एनफ है. सो सॉल्व करने पर व्हाट विल गेट? वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एलिमेंट, वी हैव टू पुट माइनस, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एलिमेंट. सो 3 इंटू -1 इज -3, minus 0 into 2 is 0. I will get the value -3, which is not equal to 0. That means the given matrix is non-singular matrix, therefore we can find inverse of A. So next we need to find adjoint of A. For that we need to find cofactors of each element. So what was the formula for cofactor? Formula for cofactor was Aij, it was -1 power I plus j m ij, ठीक है. दिस इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij. दिस वाज द फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है हर एक एलिमेंट के लिए एंड वी विल फाइंड कोफैक्टर. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड A11. सो लेट मी डू दिस डायरेक्टली. हम इसको डायरेक्टली करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसीजर बन जाएगा इसीलिए. सो A12, A13, A21, A32 एंड A33, ठीक है. So equal to, let me put equal to. Now due to this coefficient -1 power I plus j, यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसा आएगा, ठीक है. बस ऑल्टरनेटिव साइन पुट करते जाना है, स्टार्टिंग विथ प्लस साइन. सो लेट मी पुट द ऑल साइंस. सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. सो ये जो शॉर्टकट है ये ऑर्डर 3 के लिए ही अप्लाई करना है, ऑर्डर 2 के लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है. ऑर्डर 2 के लिए शॉर्टकट यूज कर लेना है. लाइक जैसे कि मैं बताया था, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट. वैसे करने से मेरे को मिल जाएगा. ये सिर्फ ऑर्डर 3 के लिए, ठीक है. नाउ लेट्स फाइंड माइनर निकालना है. सो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है मतलब इसका रो कॉलम को डिलीट करना है, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है. सो इसका डिटरमिनेंट निकालना है मतलब
3 इंटू -1 इज -3 -0 इंटू 2 इज 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन पुट किया, देन इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो मेरे को ये मिल गया, इसको सॉल्व करके लिख लेना है। नेक्स्ट, ये एलिमेंट का माइनर निकालना है, इसका रो कॉलम को डिलीट करना है, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, सो ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब 3 इंटू -1 -3, देन माइनस साइन 0 इंटू 5 0, सो -3 -0। Now what is the next element? ये नेक्स्ट एलिमेंट, इसका कोफैक्टर निकालना है, इसको रो कॉलम को डिलीट करना है, ये एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 5 15, सो 6 माइनस 15। नेक्स्ट एलिमेंट इज A21, इसका डिटरमिनेंट, इसका रो कॉलम को एस करना है, देन ये एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है, ये 4 एलिमेंट का। ठीक है, सो 0 इंटू -1 इज 0 माइनस 0 इंटू 2 इज 0, सो आई विल गेट 0। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट? ये नेक्स्ट एलिमेंट है, इसका रो कॉलम को डिलीट करना है, ये 4 एलिमेंट रिमेनिंग है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। 1 इंटू -1 इज -1 माइनस 0 इंटू 5 0, सो -1 -0। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब इसका कोफैक्टर निकालना है, रो कॉलम डिलीट करना है, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है। क्या क्या एलिमेंट है? 1 0 5 2, सो 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 0 इंटू 5 इज 0, सो 2 -0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? A31, सो इसका रो कॉलम डिलीट करना है, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकालना है? 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 3 0, सो आई विल गेट 0। नेक्स्ट A32 मतलब इसका रो कॉलम डिलीट करना है, सो ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 3 0, सो अगेन यू विल गेट 0। नेक्स्ट A33 मतलब इसका रो कॉलम डिलीट करना है। ठीक है, इसका रो कॉलम डिलीट करने पर ये एलिमेंट रिमेनिंग रहेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। 1 इंटू 3 3 माइनस 0 इंटू 3 0, सो 3 माइनस 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। सो -3 इंटू +1 इज -3, -3 इंटू -1 इज +3, -9 इंटू +1 इज -9, देन ये तो 0 है, देन क्या है? -1, देन -2, इसका वैल्यू 0 0, एंड इसका वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, सो दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। नाउ इसको डिटरमिनेंट में पुट करना है। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज, हर एक एलिमेंट की जगह पे उसका डिटरमिनेंट का, उसका कोफैक्टर का वैल्यूज पुट करना है। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ कोफैक्टर? -3 3 -9, -3 3 -9, नेक्स्ट क्या है? 0 -1 -2, 0 -1 -2, एंड देन 0 0 3 0 0 3। क्या कर लिया हम लोग? यहाँ पे एलिमेंट्स की जगह पे उसी का कोफैक्टर का वैल्यू पुट कर दिया। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी -3 3 -9 0 -1 -2 एंड 0 0 3। ठीक है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, मतलब रोज में जो भी एलिमेंट है उसको कॉलम्स में लिख लिया। ठीक है, तो मेरे को मिला एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको फॉर्मूला में पुट करना। व्हाट इज द फॉर्मूला? सो A inverse is adjoint of A divided by determinant of A. So determinant of A का वैल्यू क्या था? So that was -3. So 1 upon -3, ये है determinant of A का वैल्यू, -3 0 0 3 -1 0 एंड -9 -2 0, सॉरी 3। ठीक है, सो ये है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको पुट कर दिया। Now what we can do? We can multiply this -1/3 inside the matrix, so I can find the final answer. So A inverse is equals to, so -1/3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। So -1/3 into -3 is 1, and -1/3 into 0 will be 0, -1/3 into 0 will be 0, -1/3 into 0 will be 0. So ये एलिमेंट 0 ही होगा। Next, 3 into -1/3 is -1, -1 into -1/3 is 1/3, -9 into -1/3 is 3, -2 into -1/3 is 2/3, and 3 into -1/3 is -1। ठीक है, सो ये है A inverse. So this is how you calculate inverse of any matrix. ठीक है, so by using adjoint of A and determinant of A we can find A inverse. So this is it for the video.
If you want to learn the other topics on determinant, so you can check the link in the description. Thank you for watching this video.